Welcome back, champions. So children, today in this accountancy class we will continue with the same chapter, right? You all must be wondering why I am taking so much time in this chapter, such a simple chapter, but I am taking so much time. Children, the reason is simple. This chapter is based for your admission, retirement and death. So I want you to understand the concept, to understand the logic behind each and every item, right? Like how to treat general reserve, how to treat goodwill, how to treat investment fluctuation funds, or how to treat profit and loss balances. So my motto is that only, right? Hey, Aryan, what are you thinking? From the last 2 minutes, I'm observing that you are lost somewhere. No, you have to tell me. In fact, you have to tell the whole class. What? Rushil asked you what you ate in your lunch. Then you said mutton mushroom. Wow, yummy. Then he asked you what peas said to mushroom. Okay. Then what you replied? You don't know the answer. Oh, in that case, Rushil, you have to tell the whole class what is the answer. Now, I'm also curious to know what pea said to mushroom. What? Pea said, shift mushroom. I want some room. Okay. रोशिल, वैसे तुमने कुछ नहीं बोलना क्लास में, और जब पंचेस तुम्हारे आते हैं, my God, sit down. Okay, children, let's get back to the class. We'll start with question number 16, right? So I am reading this question for you all. Now pay attention. Nitin, Tarun, and Amar are partners sharing profit equally and decided to share profits in the ratio of 2:2:1 with effect from 1st April 2020. So old ratio is equal, means 1:1:1. New ratio is 2:2:1. With effect from 1st April 2020, the extract of their balance sheet as at 31st March 2020 is as follows. Investment fluctuation reserve, if you see on the liability side, it's given as 60,000 rupees, and asset side investment at cost 4 lakh rupees, means उसकी वैल्यू कितनी है 4 लाख रुपीस बुक्स में, और हमने रिजर्व कितना बनाया हुआ है 60,000 रुपीस का. पास द जर्नल एंट्रीज in each of the following situations. Now the number 1 situation, when its market value is not given. First is when its market value is not given, means neither there is increase or decrease in the value of investment. That means हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी ही बुक्स में रहेगी, right? So what we will do, simply we will distribute the investment fluctuation reserve between the partners, right? So 3 partners are there, amount is 60,000 and ratio is old ratio. Old ratio में याद है ना, old ratio में हम लोगों को distribute करना है, new ratio में नहीं करना. जितने भी हमारे आइटम्स जो प्रॉफिट में से हमने निकाली हुई हैं बिफोर द चेंज इन द रेशो, जो आपकी रेशो थी आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे. आफ्टरवर्ड्स हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट अगर करेंगे तो मे बी इन फ्यूचर डिस्प्यूट्स या कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर, राइट? सो फर्स्ट केस इज व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मींस सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, क्वेश्चन नंबर 16, स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट ए. हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. हमें झगड़ा चाहिए नहीं फ्यूचर में, तो हम क्या करेंगे, जो ये रिजर्व था जो हमने प्रॉफिट में से बना के रखा हुआ था, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशियो. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगेन आप जब बैलेंस शीट बनाते हो, कहाँ दिखाते हो, इस साइड में, आपकी लाइबिलिटी साइड में आता है ये. दिस इज एसेट साइड एंड दिस इज लाइबिलिटी साइड. तो आप इसको यहाँ पे दिखाते हो. अब हम इसको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं. दिस इज योर क्रेडिट साइड, राइट? तो जब खत्म करना है इसको अब क्या करना पड़ेगा, डेबिट करके हम इसको खत्म करेंगे. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2. नेम ऑफ द पार्टनर, first partner is Nitin's capital account. Then next is Tarun
account, and the third one is Amar's capital account, right? Amount is 60,000. When we distribute 60,000 in Nitin, Tarun and Amar, then amount will be 20,000 and 20,000, being investment fluctuation reserve distributed among partners in old profit sharing ratio. Being investment, okay, I will write investment fluctuation reserve distributed among old partners in old ratio, right? I hope this case is clear. First case was when its market value is not given, means आपको बैलेंस शीट में 4 लाख की वैल्यू दी हुई है, राइट? और यहाँ पे आपका रिजर्व है 60,000 का, ये आपकी रिजर्व है, 4 लाख कॉस्ट दिया हुआ है, whereas no market value is given कि मार्केट जो वैल्यू है वो 4 लाख है या 4 लाख 20 हो गई है, 350 हो गई, कुछ ऐसे मेंशन नहीं किया. That means neither there is increase or decrease in the value of investment, right? So हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब चेंज हो गई है, राइट? तो टू अवॉइड डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फ्यूचर हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे खत्म कर देंगे. किसको खत्म करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, राइट? सो दिस इज योर पार्ट 1. इसको नोट करो, देन विल स्टार्ट सेकंड पार्ट. नाउ पार्ट 2. व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, it's only written market value is 4 lakh. Again, no increase, no decrease. That means same entry we will pass. Investment fluctuation reserve account debit to Nitin's capital account, Tarun's capital account and Amar's capital account 60,000. Again we will distribute in 1:1:1 ratio. That will be 20,000, 20,000, 20,000. I hope both the cases are clear. Now children, in case number 3 and केस नंबर 4, इवन केस नंबर 5, 3, 4, 5, इसमें एक नया कंसेप्ट हम सीखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट. दैट आई विल बी डिस्कसिंग आफ्टर क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 19, राइट? तो रीवैल्यूएशन हम बाद में शुरू करेंगे. अभी सिर्फ हम लोग सिंपल देख रहे हैं कि जब डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मना किया हुआ है, इन दैट केस हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. बट रीवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मैं इसको अलग से करूंगी, अभी इसके साथ मैं नहीं करूंगी, right? So let's start question number 17, page number 4.41. Question number 17. Now listen, X and Y. X and Y are partners sharing profits and profits in the ratio of 2:1. Means old ratio is 2:1. Two partners are there, X and Y. On 31st March 2020, their balance sheet showed जर्नल रिजर्व ऑफ 60,000. जर्नल रिजर्व कितना है? 60,000. ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1. पार्टनर्स आर X and Y. It was decided that in future they will share profits and losses in the ratio of 3:2. So old ratio is 2:1 and new ratio is 3:2. Old ratio and new ratio, right? It was decided that in future they will share profits and losses in the ratio of 3:2. Pass necessary journal entry in each of the following alternative cases. Now first case is when, listen carefully, when journal reserve, ध्यान सबका इधर, focus everyone, yes, when journal reserve is not to be shown in new balance sheet. When journal reserve is not to be shown in new balance sheet, मतलब जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट जो नई रिवाइज बनेगी, तो ये क्या कह रहे हैं कि आपको दिखाना नहीं है. दिखाने का कैसे नहीं दिखाएंगे, हम उसको खत्म ही कर देते हैं. खत्म कैसे करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एक्स और वाई के बीच में ओल्ड रेशो में, राइट? तो पहले पार्ट 1 कर लेते हैं.
पार्ट 1, राइट। सो जर्नल रिजर्व सिंपल खत्म करना है। क्रेडिट आइटम है जनरल रिजर्व, लायबिलिटी में दिखाते हैं, इसको हम डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, किसको देंगे हम? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। सो 2x कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 60,000, 60,000। So 60,000 into 2/3, this comes to 40,000 and 20,000. I hope यहाँ तक clear है। Now we will write the narration. Journal reserve distributed among old partners in old ratio। ओल्ड रेशो में हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। नाउ ये देख लो एक बार, नोट करो इसको, जल्दी खत्म करो, देन आई विल स्टार्ट केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 2, when general reserve is to be shown in the new balance sheet, when general reserve is to be shown in the new balance sheet means उसको जो पार्टनर्स हैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि सेम जो वैल्यू है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। बट द पॉइंट इज, अगर हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं जनरल रिजर्व को, और कल जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी चेंज होती है, तो मे बी पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। नाउ अब इसको हम अवॉइड कैसे करेंगे? हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन? अब हम क्या करेंगे, हम एक जनरल एंट्री पास कर देंगे और उस इफेक्ट को, जो चेंजेस हैं, जो चेंज आ रहा है, उससे पहले ही हम इसके इफेक्ट को, जनरल रिजर्व के इफेक्ट को विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब वो हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस बुक्स में वो रिकॉर्ड हो गया कि किस पार्टनर को हमें डेबिट करना है जनरल रिजर्व के लिए और किस पार्टनर को हमें क्रेडिट करना है। सो दैट लेटर ऑन, जब भी अगर आगे इन फ्यूचर जब कभी अगर फर्म बंद हो रही हो, जैसे लास्ट चैप्टर आपका डिसॉल्यूशन है जिसमें फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो पता होना चाहिए किस पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, राइट। तो उनकी कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस निकालने में बहुत इजी रहेगा। या जब रिटायरमेंट होती है या कोई पार्टनर एडमिट होता है, तो उस केस में अगर किसी पार्टनर को अपना वैल्यू निकालनी है तो क्लियर रहता है कि हाँ किस पार्टनर की कितनी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, राइट। नाउ इन दिस केस when they want to carry on with the general reserve in the new balance sheet, same amount वो balance sheet में दिखाना चाह रहे हैं, revised balance sheet में, new मतलब revised balance sheet में, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? पर एंट्री से पहले हमें क्या करना है? we have to calculate sacrificing ratio, right? So sacrificing ratio, yes Rohit, what is the formula? Sacrificing ratio, yes, old ratio, good, old ratio minus new ratio, right? Now Akash, tell me what is the next step, what we have to do? Old ratio of partners are x and y, so x sacrifice, how we are going to calculate, Akash? Yes, 2/3, good, minus 3/5. Now what is next, Akash? We will take LCM, okay, 15, right? So 5 3 3 2 are 6, 5 3 ja 3 3, sorry 3 5 are 10 10 10 10, 5 3 are 3 3 are 9, so 1/15, correct. Now y is sacrifice, we will calculate sacrifice or gain, we have to find out 2/3 minus 3/5, ये x आपका x का आ गया, y का कितना हो गया? 1/3 minus 2/5. Again LCM 15, 3 5s are, so 5 minus 5, 3s are 3 2s are 6. That means y is gaining here, minus 1/15. Sacrificing हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अपोजिट जो होगा वो क्या होगा? आपका गेन में जाएगा। जो भी साइन आपका अगर अपोजिट में आ रहा है
मीन्स माइनस जो आ रहा है वो गेन हो गया और ये जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। नाउ वी विल पास द एंट्री। नाउ एंट्री, अब हमें यहाँ से पता चल रहा है वाई जो है वो गेन कर रहा है। वैल्यू कितनी है हमारी गुडविल की, वैल्यू इज 60,000 रुपीज। नाउ 60,000 हमारी गुडविल की वैल्यू है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 1/15, तो 15 4 जा, तो 4,000 जो है हमारा अमाउंट आ गया। y को हम डेबिट करेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसको करना है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, और हमारे क्वेश्चन में कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, x इज सेक्रीफाइसिंग, सो x कैपिटल अकाउंट, राइट। विल राइट द अमाउंट 4,000, sorry this is not goodwill, this is journal reserve, right. So our narration will be adjustment entry passed on, or we will write not on, adjustment entry passed for journal reserve on change in profit sharing ratio, right. So this is part number 2। हमने क्या किया, कैलकुलेट किया सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, देन हमने हमारा 1/15 x का आ गया सेक्रीफाइस और y का गेन आ गया -1/15। जो हमारी जनरल रिजर्व की जो फिगर थी 60,000, उसको हमने 1/15 किया, दैट कम्स टू 4,000 रुपीज। जो पार्टनर यहाँ पे, जो पार्टनर आपका यहाँ पे गेन कर रहा था, उसको हमने क्या किया, यहाँ पे डेबिट कर दिया, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। सो चिल्ड्रन, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। इसको जल्दी से नोट करो, देन विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 19, Bhavya and Sakshi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Old ratio is question number 19. Old ratio is 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as under balance sheet, you can see. Then now the adjustments. The partners have decided to change their profit sharing ratio to 1:1. That means new ratio is 1:1, right, with immediate effect. For this purpose, they decided that investments to be valued at 20,000. Investments to be valued at 20,000. If you see, the value of investments given is 30,000, right. 30,000 अगर आपकी वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, और अगर आप लाइबिलिटी साइड में देखते हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो फर्म ने क्रिएट किया है दैट इज 20,000, और आपकी बुक वैल्यू कितनी है 30,000, और अभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, मार्केट वैल्यू कितनी होगी 20,000। मीन्स 30,000 मेरी कॉस्टिंग है, मेरी जो मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी बुक्स में दिखाई है, और मार्केट वैल्यू 30,000 की इन्वेस्टमेंट की आज की डेट में मार्केट वैल्यू कितनी रह गई है 20,000। दैट मीन्स फर्म को 10,000 का लॉस हो रहा है यहाँ पे। अब ये 10,000 फर्म कहाँ से रिकवर करेगी, जो उसने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्रिएट किया हुआ है। वो फंड कितने का क्रिएट किया है 20,000 का, राइट। मैं समझा रही हूँ, बोर्ड पे देखो। इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, इन्वेस्टमेंट जो आपकी बैलेंस शीट में दी हुई है, राइट। बैलेंस शीट में जो आपकी, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू दी है वो दी आपकी 30,000, राइट। ये आपकी बुक वैल्यू है, दिस इज योर बुक वैल्यू। एंड लाइबिलिटी साइड में जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, जो भी बोल सकते हो आप, 20,000 की वैल्यू दी हुई है। नीचे आपको बोल रहे हैं कि जो मार्केट वैल्यू है, द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, ये कितनी है आपकी 20,000, राइट, 20,000। अब मुझे बताओ, मेरी बुक वैल्यू जो मैंने बुक्स में दिखाई है वो 30,000 है,
मैंने जब देखा मार्केट में उसकी वैल्यू करी तो पता चली उसमें अब 20,000 रह गई है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 10,000 का लॉस हो रहा है। तो जो ये 10,000 है, जो ये आपका 10,000 रुपीज है, ये 10,000 हम कहाँ से रिकवर करेंगे? यहाँ से। तो अब जब मैं 10,000 यहाँ से रिकवर कर लेंगे तो आपका बैलेंस कितना बचा? आपका बैलेंस जो बचा वो बचा, ये माइनस किया तो बैलेंस आपका बचा 10,000 रुपीज, राइट। ये 10,000 रुपीज जो है वो पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा। 30,000 की इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू आपको बैलेंस शीट में, फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें लिखी हुई है। आपको मार्केट वैल्यू इज 20,000, फर्म हैज ऑलरेडी क्रिएटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000। हमने क्यों क्रिएट किया रिजर्व? ताकि आगे फ्यूचर में अगर कुछ हमें इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर हमें लॉस होता है, मार्केट वैल्यू क्योंकि फ्लक्चुएट करती है, राइट। अगर अप होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉफिट होता, बट यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ये जो लॉस हुआ हम यहाँ से अपना कवर अप कर लेंगे। तो अभी भी मेरे पास 10,000 बैलेंस बच रहा है, तो ये जो बैलेंस बचेगा ये मैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इन फ्यूचर चेंज होने वाली है, हो रही है, राइट, विद इमीडिएट इफेक्ट। Now we have to calculate sacrificing ratio. So sacrificing ratio means old ratio. Sacrificing ratio means old ratio minus new ratio, right? Now इसका हम पहले sacrifice निकाल लेते हैं। पार्टनर्स हमारे हैं भव्या एंड साक्षी। So भव्या का हम निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो इज 3/5 minus 1/2 and next partner is साक्षी। साक्षी का है 2/5 minus 1/2। डिनोमिनेटर मैच कर लेते हैं। 10, 5 2 2 3 6 minus 2 5 5, so 1/10 and साक्षी 10 5 2 2 4 minus 2 5 10, तो 5 1 5, so 5, so माइनस आ गए यहाँ पे, मीन्स साक्षी जो है वो गेन कर रही है एंड भव्या इज सैक्रिफाइसिंग, राइट। अब हम देखते हैं इसकी एंट्री कैसे पास करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग क्लियर कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000 मीन्स हमें जो है इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। सो खत्म क्या कर रहे हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। सो फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अमाउंट आपका दिया हुआ है कितना दिया है? 20,000, राइट। 10,000 का तो मुझे सीधे से पता चल गया मेरी इन्वेस्टमेंट जो है कम हो गई है। कम करने का मतलब है जो एसेट है ये आपका एसेट होता है, राइट। एसेट जो होता है आपका डेबिट बैलेंस होता है। जब एसेट इंक्रीज होते हैं हम डेबिट करते हैं और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, राइट। सो हमने यहाँ पे लिखा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट आ गया? 10,000, राइट। अब जो बैलेंस 10,000 बचा है उसको हमें 3:5 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। सो 2 पार्टनर्स आर, कौन है? भव्या's capital account to Sakshi's capital account, right। 10,000 बचा, 10,000 into 3/5, तो आपका आ गया 6,000 and 4,000, 6,000 and 4,000, राइट। तो ये आपका फर्स्ट एंट्री हमने कर दी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हमने जो है यहाँ पे सेटल कर दिया, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे किया? जो ये 10,000 है, ये कौन से 10,000 है? ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट जो 20,000 की रह गई है, जो ये 10,000 से डिक्रीज हुआ, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको 10,000 से कम कर दिया है, राइट। भव्या's कैपिटल टू साक्षी's कैपिटल, जो बैलेंस अब बचा 10,000, ये वाला 10,000 जो बचा इसको हमने इन दोनों के बीच में 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, राइट। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे का हम लोग पार्ट करते हैं।
Now, part 2, goodwill of the firm valued at 24,000, right? So 24,000 आपको वैल्यू हुई है गुडविल की, और गुडविल का है आपका इनटू जो आपकी जो ये रेशो दी हुई है, इसमें हमको इफेक्ट दिखाना है. सो कितना आ गया 2400 रुपीज. दैट मीन्स एंट्री जो हमारी क्या पास होगी, सेकेंड एंट्री, साक्षी को हम डेबिट करेंगे. साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 टू भव्यास कैपिटल अकाउंट 2400, right? Being adjustment for goodwill passed on change of profit sharing ratio. Being adjustment for goodwill made on change in profit sharing ratio. ये narration आप लोग लिख लेना. Now the third part is general reserve. Now general reserve amount is 2340. So 2340 again not to be distributed means हमको क्या करना है, gaining partner to sacrificing partner के through we have to record this effect, right? Again I am repeating, जब उसमें लिखा हो कि आपको distribute नहीं करना है, disturb नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, एंट्री के थ्रू उसको इफेक्ट दिखाना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो 23400 इंटू 1/10 किया तो 2340, राइट. अगेन सेम एंट्री पास होगी आपकी, साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2340 टू भव्यास कैपिटल अकाउंट 2340, राइट. तो जनरल रिजर्व का भी हमने एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया, वही नरेशन रहेगी. एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर जनरल रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट. इसको नोट कर लो. एंड चिल्ड्रन, with this we will end today's class, and in the next class I will take the new topic, that is revaluation account. Very interesting topic. So till then children, you have to practice all the questions. Take care and bye.